अब आपको बताएं कि लंदन के इलाके ब्रेंट में मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद डार की जानिब से सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन भर से काउंसलर्स और मेयर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। मजीद तफसीलात जाने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के इलाके ब्रेंट के सिविल सेंटर में सजने वाली इस सालाना तकरीब में मेयर्स गाउन पहने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों के मेयर्स ने शिरकत की। मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फलाही तंजीम रीड फाउंडेशन के क्याम का मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद और तालीम की रोशनी को हर सू फैलाना है। उनका कहना था कि इस वक्त ये तंजीम बिला रंगो नस्ल बगैर किसी तफरीक के काम कर रही है। अरशद महमूद डार का कहना था कि यह तंजीम पाकिस्तानियों समेत दीगर कौमियत के लोगों की भी खिदमत में पेश है, जो कि नहायत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने शानदार फंड रेजिंग इवेंट पर शुरका को मुबारकबाद पेश की। Friend and our host for this evening, Councillor Liz Dixon, who's been absolutely wonderful. Thank you very much. इस मौके पर साबिक मेयर हॉन्सलो काउंसलर समिया चौधरी ने कहा कि इवेंट बहुत अच्छा है और बड़ी तादाद में मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत काबिल सिताइश है। उनका कहना था कि रीड फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियों को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक ये जो ब्रेंट मेयर ने आज अपना गाला फंड रेजर डिनर रखा है, एक्सीलेंट डिनर है उनका, पहले भी बहुत एक्सीलेंट था। एंड वो जो है बहुत काउंसिलर महमूद इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड to raise funds for his charities, and I would like to say to everybody here कि अपनी उनकी charity को support करें। उन्होंने अपने मेरे लिए में बहुत अच्छा काम किया and I'm proud to be here supporting him। दीगर मुकर्रिरीन ने भी तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के फलाही कामों को बेहद सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी नेकी है, जिसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज का इवेंट बहुत अच्छा है। मैं अरशद भाई का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो मेयर हूँ ईलिंग का, वहाँ भी मैं चैरिटी के लिए काम करता हूँ और भाई अरशद भाई ने सब कम्युनिटी को इकट्ठा किया है and it's very nice of him. It's the mayor's last event and it's really good to see so many people out here this evening coming out to support him and all the charities as well. I'm absolutely delighted today. This is my final gala fundraising dinner in Brent. And the people have turned up in their hundreds. I'm so pleased that they have joined us tonight and they're supporting my two charities, Sufra and Reed. And we are raising funds here tonight for the very worthy children and the charities. So hopefully we will make a hectic amount today so that we can help the charities. जिस तरीके से मुख्तलिफ तबकात के लोग यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से जनरॉसिटी के साथ यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। It's a wonderful event in an amazing venue, and I'm on the board of Sufra, one of the charities that's being supported through the event tonight. So I'm really grateful to everybody who bought tickets to come tonight, and it's a lovely venue and everyone's participating in a lovely way, and the mayor is to be celebrated for all the good work. We are here to wish the Brent mayor, and it is an amazing evening and we've enjoyed it. The food was great and the ambience and everything about this evening has been amazing, and we want to bless him and thank him for inviting us and having this event. That we have, he's clearly a very popular mayor. To be able to get the whole communities out here together for his charities. Incredible, absolutely incredible. He's clearly a very effective mayor. He's a community engager. He clearly is much liked by the communities. We're here to raise much needed funds for his two charities, and I have to say it's such a brilliant event. We have so many different people from all different communities, from all parts of Brent, doing one thing, right, making sure that the young people, the young children who need our help and support get it in their time of need. And it's all thanks the mayor of Brent making sure that he drags in the crowds. And that's what it's all about. That the mayor making sure that everyone is recognized. तकरीब में हाज़रीन की तफरीक के लिए शानदार महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। अक्सर शुरका बेहद महजूज हुए। इस मौके पर कई शुरका बेख्तियार झूमते रहे। तकरीब के आखिर में लोगों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से की गई। अब आपको बताएं कि बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 40वीं बरसी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। जियालों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए।
शहीद जमहूरियत जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पाकिस्तान और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मनाई गई। इसी मुनासबत से बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके कश्मीर के कोऑर्डिनेटर कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत मिडलैंड ब्रांच के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद शबीर ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी नायब सदर और साबिक सदारती मशीर वाजिद अली बरकी, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी वकार असलम कियानी और पीपल्स यूथ बरतानिया के सदर यासर बिलाल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी जाले आज भी भुट्टो के नजरियात और फलसफे को जिंदा रखे हुए हैं। पार्टी कायदीन के खिलाफ हर साजिश और इंतकामी कार्रवाई का डट कर मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर वकार असलम कियानी, वाजिद अली बरकी, नायब हुसैन मुगल, ताहिर बिलथवी, चौधरी शेर, यासर बिलाल, शहजाद मुगल और दीगर ने कहा कि जाले आज भी जोशो खरोश के साथ भुट्टोइज्म के फलसफे पर कायम हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मैनचेस्टर में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के 10 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर बरतानवी शहजादे चार्ल्स को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। बरतानवी शहजादे का ब्रिटिश मुस्लिम सेंटर की बच्चियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तमाम सूरत हाल तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के 10 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी प्रिंस चार्ल्स बच्चों के दरमियान घुल मिल गए। बाद में ब्रिटिश हेरिटेज सेंटर के अरकान ने प्रिंस चार्ल्स को सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का विजिट कराया और सेंटर अगराज़ व मकासद के बारे में मालूमात फराहम की, जिस पर प्रिंस चार्ल्स ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहजादा चार्ल्स का कहना था कि इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह लोग काम कर रहे हैं और बरतानिया की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इन तमाम मुसलमानों का और पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खवातीनों हजरात के अलावा मशहूर बिजनेसमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन खसूसी अनिल मसरत ने भी शिरकत की। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में महफिल शेर सुखन और गीत गज़ल का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से आए मेहमान शेर खान राजा जावेद जैदी ने सुफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। सकाफत किसी भी खिते की पहचान होती है। दियारे गैर में होते हुए भी अपनी सकाफत से जुड़ा रहना कोई पटवारियों से सीखे, जो आज भी उसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने के लिए कोशा हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए ड्यूसबरी शहर में ख्वाजा ताहिर अयूब और दीगर ने शेर ख्वानी और गीत गजल की महफिल का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान से आए नौजवान शेर ख्वां राजा जावेद जैदी ने अपने फन का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। महफिल में ढोल और घड़े की थाप और बाजे और सितार के सुरों ने वो समा बांधा कि शायकीन भंगड़े डालने पर मजबूर हो गए। महफिल में बरतानिया भर से लोग शरीक हुए। उनका कहना था कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम तफरीह के साथ साथ मेल मिलाप और सकाफत के फरोग का भी अहम जरिया है। दियारे गैर विच ये जो प्रोग्राम होना बहुत बड़ी बात है और इसने नाल अपनी माँ बोली प्रमोशन होनी है। मैं मुबारकबाद पेश करना ताहिर अयूब साहब की, जिन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया है। तो इस तरह ने प्रोग्राम बरतानिया च होने चाहिए ताकि असाने यंगस्टर जेडे उन्हें भी इसने पर मालूमात मिले। आज ड्यूसबरी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होया। चौधरी अयूब ताहिर अयूब साहब ने पेश किया, ऑर्गेनाइज किया। तो बरतानिया में शेर व अदब, मजहबी, सियासी, अदबी सारिया चीज़ा ज़रूरी और बिलखसूस नई नस्ल और पुरानी नस्ल दोनों वास्ते बहुत ज़रूरी ये प्रोग्राम होने चाहिए। ताहिर अयूब साहब और अपने साथियों इस महफिल ने तमाम किया। साड़ी कोशिश ये है कि जी साड़ी मां बोली जबान है, साड़ी जी आबा अजदादनी सकाफत है, उसकी जिंदा रखने वास्ते अस पूरी कोशिशें करी रहे हैं और साढ़े संगी साथी हर शहर तो आनी तो साना तामल करी रहे हैं और साड़ी अपनी आने वाली नस्ल की भी पहचान कराना चाहते हैं कि जी साड़ी सकाफत है इसने विच बड़े फायदे हैं, इसने नुकसान कौन है। इस बज़म से मुझे कुदरती तौर पे बहुत प्यार है, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है एक तो इस चीज़ को एक मुख्तलिफ रंग दिया जाए और दूसरा जो हमारे मेहमान पाकिस्तान से आए हैं खसूसन आर्टिस्ट उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए, चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में शायद उस तरह से उन्हें पजीराई नहीं मिलती है जिस तरह से मिलनी चाहिए। और दूसरा यहाँ की कम्युनिटी में जो नुमायां लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करने की हमने पूरी कोशिश की है। मैं आपके इस माइक के तवस्सुत से जितने मेरे मेहमान तूल वर्ष से आए हैं खसूसन मीडिया के दोस्त उनका दिल की ताकराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लगना पाया जी। इंग्लैंड विच अच्छी तरह
खास कर जी साड़ी मां बोली जबान है पठवारी उसकी प्रमोट होने तक है इतने यंगस्टर जितने भी है ब्रिटिश जितने भी है इतनी ज़्यादा मुहब्बत करने इस पठवारी जबान नाल कि मैं बयान ना करी सकना। इस टाइम असा इंग्लैंड आ जी ड्यूज बरी ने मकाम पर जी साड़ी मां बोली है पठवारी पहाड़ी इसने फरोग वास्ते बरतानिया च प्रोग्राम जरा बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। असल ने बच्चों ने जी उन्होंने दिलचस्पी इजाफा कर रहे हैं प्रोग्राम तो अस चाहते हैं कि पहाड़ी पठवारी मां बोली वास्ते जितना भी प्रोग्राम इस तरह पूरे बरतानिया मुनक़िद किए जान उस वास्ते उस बच्चों की बहुत ज़्यादा आना चाहिए बच्चों की बहुत ज़रूरी चीज़ अस जिथे भी गए अपना रंग अस छोड़ने कोई शक नहीं मगर इसना फ़ायदा अपनी नस्ल की नहीं हो रहा। इस वास्ते ये आवाज़ उठाई जाए कि इतने स्कूलों में वारिस शाह तो मियाँ मोहम्मद दायम इकबाल तो साईं अहमद अली रानी की किताबों ने तर्जमे किए जान या वो किताबां स्कूलों पढ़ाइया जान। असा इसकी अपनी सकाफत ता मनसा जिसले 10 साल बाद इतने बच्चे है सन। तकरीब की मेहमान खसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाउला अशरफ ने प्रोग्राम के इनेकाद को बेहद सराहा। Obviously at this time of great divide, particularly with Brexit ongoing at the moment and some of the divisions that is causing, it's just great to be here amongst friends this evening and like I say to recognise some of those positive achievements that people are making in our community, and I hope we can do this sort of thing much more often, bring as many members of the community in as possible and show that we're all working together for common values. तकरीब के इख्तिताम पर फनकारों में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। सकाफत तो दूर रहने वाली कौमां अपनी शनाख्त भी भुली गछनियां दियारे गैर च रहने में भी पठवारी शेरखाना अपनी सकाफत की अपनी अगली नस्ल पहुँचाने वास्ते बहुत सोहना किरदार अदा करने पे। वकार बाबर मुगल 92 न्यूज़ ड्यूसबरी। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर जहनों में आते ही गुलामान रहमतल्लिल आलमीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुलूब खुशी से झूम उठते हैं और इस मुक़द्दस महफिल का इनाकाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक के ज़ेर साया मुनक्किद हो तो कुलूब मजीद मुनव्वर और मुअत्तर हो जाते हैं। कुआलालंपुर में सजने वाली ऐसी ही एक अजीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं जावेदुर रहमान इस रिपोर्ट में। कुआलालंपुर में अजीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जिसकी सदारत दौर हाजिर के अजीम रूहानी पेशवा शहजादा गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी ने की। रूह परवर कॉन्फ्रेंस में अमरीका से अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन याहया अल मनवे, सिंगापुर से अल हबीब हसन अल अतश, मलेशिया से अल हबीब अली ज़ैनुल आबिदीन अल हमीद और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सूफिया कराम रूहानी शख्सियात समेत हजारों मंदुबीन शरीक हुए। मुक़द्दस महफिल में पाकिस्तान से आए नातख्वान मोहम्मद हसन बिन खुर्शीद समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नातख्वान हजरात शरीक हुए और पुरसोज अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ और दुरूद पाक पेश करके हाजरीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ जबकि आलमी शोहरत याफ्ता उलमा और मशाइख ने नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दिलकश पहलुओं पर रोशनी भी डाली। तकरीब के रूह रवां अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी ने अपने पुरअसर खिताब में कहा कि अहले ईमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब हासिल करने की तगदो करें। उन्होंने कहा कि कुर्बे इलाही की दौलत इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने से हासिल होती है और इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी सूफ़िया अज़्ज़ाम और औलिया कराम की सोहबत में रहकर ही नसीब होती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन जलानी अल बगदादी ने उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद, यकजहती, खुशहाली और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की।
स्पेन के दारकूमत मैड्रिड से 100 किलोमीटर दूर गोदलख्वारा के इलाके में अप्रैल के महीने में होने वाली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ है, मगर लोग भी इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद। शाहिद जी, शाहिद बताइएगा मौसम के हसीन नज़ारों का क्या अहवाल है? देखिए, मौसम की खूबसूरत तब्दीली ने समा बांध रखा है। स्पेन को आमतौर पे गर्म मुल्क कहा जाता है, मगर यहाँ अप्रैल के महीने में इस बर्फबारी ने बड़ा खूबसूरत समा पैदा कर रखा है। टेम्परेचर 1 दर्जे सेंटीग्रेड है, मगर जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस खूबसूरत माहौल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी बताइए कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें कुदरत का नज़ारा कि जिस इलाके में हम खड़े हैं, इस इलाके में गर्मियों में तकरीबन डिग्री 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है जुलाई और अगस्त में, और अभी अप्रैल है और ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते खुदा की कुदरत को कि इस वक्त माइनस पे जा रहे हैं और माइनस डिग्री जा रहा है और इंतहाई स्पीड से स्नो पड़ रही है। जी एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि बहुत हम तो इधर कई सालों बाद आए हैं और इत्तेफाक से ये स्नो देखिए तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, ये इलाका मैड्रिड से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो इस वक्त मुतासर है। कई जो सड़कें हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो मौजूद है, और कुछ जगह पे जो हादसात हैं उनके भी जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जी, जर्मन शहर हैम्बर्ग में सिविल सोसाइटी ने मगरबी अवाम को मसला कश्मीर से आगाह करने के लिए अमन मार्च का इनेकाद किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि भारतीय जंगी जुनून दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर को फौरी हल करने की ज़रूरत है। तफसीलात इमरान महर की इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीरी क्या चाहते हैं? कश्मीरी क्या चाहते हैं? अमन मार्च का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत इस्लामी मरकज हैम्बर्ग के हाफिज मंसूर साहब ने की। मार्च हैम्बर्ग के मरकजी बाजार से होता हुआ शहर के टाउन हॉल पर खत्म हुआ। वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने जर्मन जुबान में कश्मीर के बारे में लोगों को आगाही दी। इस्लामी सेंटर हैम्बर्ग के मिस्री नयाद इमाम महमूद ने निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मुजालिम का जिक्र करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाकर खित्ते में देर पा अमन कायम करवाए। पाक जर्मन फोरम हैम्बर्ग के रीजनल डायरेक्टर अली असगर, गजनफरुद्दीन, फारूक बेग, मोहम्मद उमर आवान, बिलाल खोकर और दीगर शुरका का कहना था कि मसला कश्मीर की वजह से 3 जंगें हो चुकी। मजीद ताखीर और जंगी जुनून दुनिया को एक और एटमी जंग में धकेल सकता है। कश्मीरी लोगों को जितना जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, और हर रोज़ की बेस पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे लोगों को बताया जाए कि ये जुल्म क्या है और कितना हो रहा है। कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए और मोदी सरकार जो है वो कश्मीर के अंदर से अपनी फ़ौजें निकालें ताकि कश्मीरी अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे उनको आज़ादी दी जाए। इंडिया उन पे जो मज़ालिम कर रहा है वो उनका हक उनको मिला जाए, वो आज़ादी चाहते हैं। इसका मकसद हम यूरोपियन यूनियन को बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बरबियत हो रही है उसको उजागर किया जाए, और उनकी आज़ादी के लिए हम हर तरह से कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कश्मीरियों को ये हमेशा आज़ादी मिलनी चाहिए, वो 70 साल से हमारे लड़ रहे हैं, तो इनका हक उनको मिलना चाहिए। मोदी सरकार को हटना चाहिए और उनको सामने आना चाहिए। जो इंडियन आर्मी कश्मीर में इनोसेंट पीपल्स के साथ जुल्म कर रही है उसके अगेंस्ट आज हम यूरोपियन यूनियन और यूरोप में आगाह करना चाहते हैं कि किस तरह छोटे बच्चों, लेडीज़ और जेंट्स के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, उसके अगेंस्ट आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन की है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम जितने भी है लोग, उनको मैंने मोटिवेट किया है यहाँ पे कश्मीर की यकजहती के लिए। आज हम यह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और यह हमने स्टाइनम से शुरू करके और रात हाउस तक हमें जाना है। अपना डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमने इंशाल्लाह ताला अपना रिकॉर्ड भी कराना है। तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और सबसे पहले यूएनओ ने जो फैसला किया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये मामला इंडिया पाकिस्तान का नहीं है। इंडिया एक जंग की तैयारी कर रहा है जिसके नताज में
पूरी दुनिया इन्वॉल्व होगी और उसमें एक हफ्ता लगेगा कि ये पूरी दुनिया अराउंड द ग्लोबल ये चला जाएगा। हम उसको रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर हाल में वहाँ पे पीस हो, हमारी एक्सेस हो, मीडिया को एक्सेस हो, हमें पता चले वहाँ आबादी कितनी है और कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको यूएनओ के डिसीजन के मुताबिक वोट करने की इजाज़त दी जाए। मार्च में शामिल ख़वातीन ने भी मर्दों के शाना बशाना भरपूर अंदाज में मसला कश्मीर उजागर करने में अपना किरदार अदा किया, हिस्सा लिया और कश्मीर में अमन कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फ्रांसीसी दारकूमत पेरिस में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मी अदाकारों माया अली और शहरियार मुनव्वर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए एहतियात दिए। राजा हबीब की ये रिपोर्ट देखिए। पेरिस के नवाही इलाके विलियर लाबेल में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मी अदाकारों माया अली और शहरियार मुनव्वर ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए भरपूर एहतियात दिए। मुकर्रीन का कहना था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अस्पताल के लिए एहतियात देने वाले पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में माया अली और शहरियार मुनव्वर का कहना था कि इन्हें फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर बेहद खुशी हुई। तीसरा शौकत खानम का जो तीसरा हॉस्पिटल है कराची में जो खुलने जा रहा है, जो इंशाल्लाह खुल जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं, उसके फंड रेजर के लिए यहाँ पे हैं। और इस वक्त पेरिस की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी ने बहुत बहुत मोहब्बत दिखाई है और बहुत सारा दिल खोल के डोनेट किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सिलसिला सिर्फ यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम लोग अभी जहाँ जाएं, इवन हमारे अलावा जितने लोग यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब ये सिलसिले को आगे लेकर जाए। अब इसके बाद हम स्टॉकहोम में भी होंगे और नॉर्वे में भी होंगे, तो वहाँ पे भी हम चाहेंगे कि आप लोग सब दिल खोल के डोनेट करें। पहली दफ़ा जो है ना इवेंट शौकत खानम के लिए करवाया फ्रांस में, और इसमें पाकिस्तानी कमेटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ अपनी कम्युनिटी का, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुश्ताक मजनून साहब की और बाकी सारी कम्युनिटी की ताउन के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है और तोक़्क़ों से ज़्यादा फंड रेजिंग हुई और इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो फंड रेजिंग यहाँ पे हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तकरीब के दीगर शुरका ने भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए भरपूर ताउन का इरादा किया। माया अली और शहरियार मुनव्वर फ्रांस के बाद दीगर यूरोपीय ममालिक में भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकारीब में खसूसी शिरकत करेंगे। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी मीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 40वीं बरसी के हवाले से सऊदी अरब में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पार्टी वर्कर्स और ख़वातीन ने शिरकत की और पार्टी कायद को खराज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखते हैं। दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक़्क़दा तकरीब से मुकर्रीन ने कहा कि भुट्टो किसी शख्स का नहीं बल्कि अब भुट्टो एक नज़रिए का नाम है, और वो नज़रिया सिर्फ पाकिस्तान के मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबके के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और पाकिस्तान को आलमी बरादरी में सुरखरू करना है। रियाद रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि भुट्टोइज़म मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है और जब तक इक़्तिदार आम आदमी तक नहीं जाता तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आज कठपुतलियों से जान छुड़ाने के लिए भुट्टोइज़म की आज से 20 साल पहले से ज़्यादा ज़रूरत है या 40 साल से ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप मैसेज पर बात नहीं करेंगे, मैसेज तक इक़्तिदार नहीं पहुंचाएंगे, आम आदमी को इख्तियार नहीं देंगे। आज 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। 18वीं तरमीम जो है वो आम आदमी का इख्तियार है। 18वीं तरमीम का मतलब है कि 73 का आइन दोबारा ज़िंदा करना। तो 73 का आइन के ऊपर जो शख्स उंगली उठा रहा है, इसका मतलब है वो रियासत का मुजरिम है। जो रियासत के मुजरिम की सरकोबी के लिए आज भुट्टोइज़म ज़रूरत से आज से पहले से ज़्यादा वैलिड है और ज़्यादा ज़रूरत है। जनरल सेक्रेटरी राना आदिल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो विजन कौम को दिया था वो इस पर पूरा उतरती नज़र नहीं आती, इसलिए पीपल्स पार्टी सऊदी अरब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करेगी। हम बेसिकली एक वाइट पेपर लिखना चाह रहे हैं जिसमें हम मईशत की जो ज़बू हाली है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम क्वालिटेटिव इशूज़ पर बात करेंगे, हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। हुकूमत में आने से पहले जितने इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जितने वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। इनका सबसे जो बेस्ट सेलिंग एसेट था वो असद उमर था। ही इज़ द बिगेस्ट फेलियर।
लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि ये लोग कामयाब हों। जमहूरियत की जदोजहद में, जमहूरियत के रॉ में इनको कामयाब होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि इन्हें राइट टाइम पे रियलाइज़ करवाएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इनको इकानमी का संभालना, इनके सोशल स्ट्रक्चर को संभालना। प्लंडर्स करना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तकरीब से पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद राना समेत सीनियर रहनुमा मोहम्मद असगर कुरैशी, फरा एहसन, सदाकत हुसैन भरगोश, वसीम साजिद, यूनुस अबू गालिब, रियाज राठौर, सरदार अब्दुल रज़ाक और दीगर ने भी खिताब किया और कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तानी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सियासी जदोजहद करते रहेंगे। मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्लिम लीग नून हाजी चौधरी शाहनवाज रांझा और चौधरी जावेद इकबाल नायब सदर मुस्लिम लीग नून सरगोदा की दुबई आमद के मौके पर उनके एजाज़ में पुरवकार इशाया दिया गया। तकरीब का अहवाल जानिए दुबई से सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में मुस्लिम लीग नून यूएई के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून यूएई की जानिब से मुस्लिम लीग नून जिला सरगोदा के सदर और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हाजी चौधरी शाहनवाज रांझा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर पंजाब चौधरी जावेद इकबाल के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हाजी चौधरी शाहनवाज रांझा ने नैब की कार्रवाइयों को इंतकामी करार दिया और कहा कि मुल्क दुश्मन ताकतें नवाज शरीफ जैसे लीडर को सी पैक की सजा देना चाहते हैं। ये आवाम ने नहीं बनाई, ये अननेचुरल हुकूमत है, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। लोग तंग आ गए हैं, महंगाई से तंग आ गए और सेलेक्टर जिन्होंने वोट दिए थे वो अब मानते ही नहीं कि हमने वोट दिए हैं। पार्टी के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की खालक जमात के लिए काम करे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि यही जमात है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएगी और यही लीडर मियां नवाज शरीफ है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में के सही महबर वक्तन और सही जो मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर पंजाब के नायब सदर चौधरी जावेद इकबाल ने कहा कि करप्शन की रट लगाने वाले हमारे कायदीन पर अब तक एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। ऐसे हो सकता था करप्शन हुई होगी, ऐसे हो सकता, कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ असल हक़ाइक़ से हटाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अवाम को पता है, मुल्क को पता है, कौम को पता चल गया है हकीकत क्या है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग ही जो आने वाली मजबूत जमात है और पाकिस्तान की खैरख्वाह जमात है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून यूएई के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान हर आजमाइश का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ये भी आजमाइश है, इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगी। ये कोई असली केस नहीं है, ये झूठे केस हैं और अपना आज तक मियाँ साहब के ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं कर सके, ना कोई जज ने बोला ये ने करप्ट है, लेकिन वो करप्शन का रोना रो रहे हैं, हालांकि वो सारे उनके इर्द गिर्द सारे करप्शन वाले हैं। इशाइया तकरीबात में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मरकजी रहनुमा हाजी चौधरी शाहनवाज रांझा और दीगर को दुबई आमद पर उनको खुशामदीद कहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबरान से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम को राइज करके तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तकरीब का मजीद अहवाल उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में नामवर समाजी शख्सियत तसद्दुक़ गिलानी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में जब तक निज़ाम तालीम में बेहतरी नहीं लाई जाती तब तक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस वक्त 31 लाख बच्चे हमारे दीनी मदारिस में हैं और ये 31 लाख बच्चों के लिए हमारी हुकूमत और रियासत ने 5 बोर्ड बनाए हैं कि आपका एक बच्चा मुसलमान ना हो, बाकी वो देवबंदी बन जाए, बरेलवी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, बच्चा उम्मती या एक मुसलमान या मोमिन की बजाय वो एक मसलक से वाबस्ता हो जाता है और यही वजह है कि हम एक कौम नहीं बन सके। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके मसाइल को इस अंदाज से हल नहीं किया जाता जैसे उनकी मुल्क के लिए खिदमात हैं। समाजी रहनुमा तसद्दुक़ गिलानी ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाज में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी सियासी नज़रियात से बालातर होकर मिलजुल कर रहती है, जिसने हमेशा कोशिश की है कि दियारे गैर में रहकर मुल्क व कौम की खिदमत का फ़र्ज अदा करते रहें। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsHD.in।